Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. This is our SST class, welcoming all of you here in this class. So in our previous classes we had discussed about the democracy, that what is a democracy and why democracy. This is the topic. This is the first chapter which we are discussing here in the class. So in our previous classes, first we had discussed this, what is democracy. Okay, we had discussed the definition, we have discussed the chords, and we have discussed the meaning of this word. After that, we had discussed the features of democracy, and then we were discussing about the countries, okay, who are telling that they are democratic, but exactly they are not democratic. And with this line, we had already discussed about these two features, like the power rests in elected peoples. Okay, this was the first feature which we have already discussed, and we have discussed the related story, which was Pakistan story. Okay, after that, the second feature, free and fair election, which we have already discussed, and we have discussed the story of China and Mexico. And now today we have to discuss the third feature of democracy, or you can say a third feature of democratic country. Okay, and what is the third feature? You have already noted, but let's recall it here. The third feature is all the adult citizen must have one vote and each vote have one value. That means we can say that किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ओके, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले हर एक सिटीजन जो एडल्ट सिटीजन है, एडल्ट सिटीजन मीन्स 18 प्लस, जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, ओके, तो हर एक एडल्ट सिटीजन को ये राइट होता है कि वो वन वोट दे सकता है. वन सिटीजन मीन्स वन वोट, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. अगर सपोज दैट मैंने किसी को वोट दिया है तो मेरे वोट को वन काउंट किया जाएगा. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ माई वोट इज वन. Okay, this is the third feature of democracy which makes any country democratic. But there are few countries like Saudi Arabia, Fiji, you can say, let me write here. Fiji is a country in Europe, Fiji, and after that in Estonia. Okay, Estonia. We have three countries, about them we have to discuss: Saudi Arabia, Fiji and Estonia. So ये थ्री कंट्रीज जो हैं, इन कंट्रीज में ऐसा क्या होता है जो इनको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने से थोड़ा सा अलग बनाता है? आई मीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम कह सकते हैं. लुक, इन सऊदी अरेबिया व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? द वुमन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया बिफोर 2015. दैट मीन्स बिफोर 2015 इन सऊदी अरेबिया द वुमेन्स डिड नॉट हैव राइट टू वोट. मतलब जो वुमेन्स हैं, जो वुमेन्स थी सऊदी अरेबिया में बिफोर 2015, उनको ये पावर ही नहीं था, उनको ये राइट ही नहीं थी कि वो किसी भी नॉमिनेटेड पीपल को वोट दे सकें. ओके, वो किसी भी पर्सन को वोट नहीं दे सकती थी बिकॉज दे आर द लेडीज एंड दे हैड नॉट पावर टू वोट इन सऊदी अरेबिया बिफोर 2015, नॉट राइट नाउ, बिफोर 2015. ओके, and the second thing is related to Fiji. What is going on in Fiji? The vote of an Fijian, Fijian means the people which is who is living in Fiji. Okay, the vote of an people has more value than that of, oh one second, than that of an Indian Fijian. Okay, so first of all, Fijian means a person who is living in Fiji, okay, who born in Fiji. So जो पर्सन फिजी में बॉर्न होगा उसकी डेफिनेटली सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता जिसे हम कहते हैं हिंदी में सिटीजनशिप विल बी फिजियन, वो फिजियन कहलाएगा. बट द पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया एंड नाउ लिविंग इन फिजी, सो दैट इज नोन एज इंडियन फिजियन. So what is going on there? What is the difference in this Fijian and Indian Fijian in the condition of vote? Look, the vote of an Indian Fijian has more value than that of an Indian Fijian. That means कि जो फिजी में रहने वाले लोग हैं, जो फिजी में ही बॉर्न हुए हैं, ओके, जिनकी सिटीजनशिप ऑलरेडी फिजियन ही थी, बॉर्न से ही, जन्म से ही, ओके, उनके वोट की वैल्यू एंड जो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुए थे लेकिन अब फिजी चले गए हैं और इंडियन फिजियन सिटीजनशिप ले लिए हैं, उनके वोट की वैल्यू, ओके, दे आर नॉट इक्वल. दैट मीन्स वी कैन से दैट फिजियन is not equal to Indo-Fijian.
Okay, we can say that a Fijian is not equal to Indo-Fijian. The value of a vote of a Fijian is not equal to the value of a vote of a Indo-Fijian in Fiji. Okay, so that makes Fiji quite different from democratic countries. Okay, now I hope this Saudi Arabia and Fiji is clear. And now we have to discuss about Estonia. What is going on there in Estonia? Look, the people belonging to Russian minority. Now we have to discuss that what is Russian minority. Russian minority, look, Russian means the people who are living in Russia, and minority means now they are going in Estonia and there are very less Russians, so they are known as minority. Okay, minority and majority, there are two words. Minority means less and majority means more. So look, जो रशियन पीपल एस्टोनिया में चले गए थे, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे रशियन पीपल तो एस्टोनिया में चले नहीं जाएंगे, कुछ रशियन पीपल एस्टोनिया में चले गए थे. सो वी कैन से दैट रशियन एस्टोनियन. ओके, तो वो माइनॉरिटी में थे, यानी वो वहाँ पे बहुत कम थे. सो वी कैन से दैट माइनॉरिटी. लाइक हियर इन इंडिया Hindus are in majority, okay, and the rest religions are in minority. So the people belonging to Russian minority find very difficulties to get the right to vote in Estonia. That means एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी थे, जो रशियन पीपल थे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी राइट टू वोट. मतलब उनको वोट देने का राइट ही नहीं था. ये राइट लेने के लिए भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी. जब भी वो किसी को वोट देने जाते थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे, इसके बाद ही वो वोट दे पाते थे. लाइक सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज, सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ID proof. Okay, they have to display there or show there, we can say. So this was the story of Estonia, Fiji and Saudi Arabia. Okay, which tell us that these three countries are like democratic, but exactly they are not democratic. Okay, this is the third feature of democracy, and which is very important. And now we will discuss about fourth one. So before discussing that, let's erase it first, and you guys just give me a single moment to erase it and write the another one. Wait a second. Okay, so the third feature we have discussed, and now we have to discuss the fourth feature, and that is, look, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen right. You can limits like this. Okay, that means कि कोई भी पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पार्टी पावर में होती है, जो पार्टी जीत जाती है, ओके, जो इलेक्ट होकर जहाँ जिस पार्टी के पीपल आते हैं पार्लियामेंट में, सो वो क्या होते हैं, वो एक लिमिटेड होते हैं, वो उनका पावर एक लिमिटेड होता है. कहाँ तक लिमिटेड होता है? सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स. ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उस पार्टी को वर्क करना पड़ेगा. एंड दे हैव टू टेक केयर अबाउट द सिटीजन्स राइट, कि किसी भी पर्सन का जो राइट है, जो वहाँ पे सिटीजन है, जो उस कंट्री में रहता है, उसका जो राइट है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो. सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ओवरऑल कि किसी भी गवर्नमेंटेड पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, जो पावर में है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे वर्क करने पड़ते हैं. एंड देयर इज ए स्टोरी विच इज़ ऑफ जिम्बाब्वे विच इज़ रिलेटेड टू दिस फोर्थ फीचर. ओके, जो बताती है कि जिम्बाब्वे डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी डेमोक्रेटिक नहीं है. क्यों नहीं है? लेट्स फाइंड इट. सो लेट्स नो about Zimbabwe first. That Zimbabwe become independent in 1980. Okay, independent in 1980. कि Zimbabwe 1980 में independent हुआ है from British. You can note down here, from British. Like us, we had independent in 1947 from British, but Zimbabwe independent in 1980. Okay, and 1980 में जब से जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से 1980 से लेकर 2017 तक, ओके, 1980 से लेकर 2017 तक जिम्बाब्वे में सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है, एक ही पार्टी का रूल चल रहा है. वो रूल्ड बाय ZANU-PF पार्टी, एंड दैट पार्टी इज ZANU-PF पार्टी. ये वो पार्टी है जो इंडिपेंडेंसी से लेकर, इंडिपेंडेंट होने के बाद से लेकर 2017 तक लगातार पावर में रही है. और इस पार्टी के जो पर्सन है रॉबर्ट मुगबे ही उस जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रहते थे अगेन एंड अगेन फ्रॉम 1980 टू 2017.
सो ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्यों होता था कि बार बार वही रूलिंग पार्टी बनते थे, बार बार वही इलेक्शंस को जीतते थे? कुछ तो कंडीशन रही होगी, कुछ तो ऐसा स्पेशल था उनमें जो उनको बाकी सबसे अलग बनाता था। बट वो स्पेशल था क्या? लेट्स फाइंड आउट। वो करते क्या थे? दे हैव अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन मेनी टाइम्स एंड इंक्रीज इट्स पावर। उन्होंने क्या किया था? इस पार्टी के आप कह सकते हो प्रेसिडेंट जो थे रॉबर्ट मकबे, ओके, उन्होंने क्या किया था? ही हैड अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजिंग की थी। अमेंडमेंट मीन्स टू चेंजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अमेंडमेंट। तो उन्होंने बार बार अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में मेनी टाइम्स एंड इंक्रीज इट्स पावर, और अपने पावर को बहुत इंक्रीज कर लिया था। इतना इंक्रीज कर लिया था कि फिर उनसे कोई क्वेश्चन भी कुछ पूछ नहीं सकता है। एज यू नो दैट द पार्टी विच इज इन पावर, द मिनिस्टर्स विच आर हु आर इन पावर हैव टू आंसर अस, ओके। वो आंसरेबल होते हैं, उन्हें आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में एंटी पार्टी के अगेंस्ट। तो इन्होंने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट करके, चेंजिंग करके अपने पावर को इंक्रीज कर लिया था, और अपने आंसरेबल कंडीशन जो उनको आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में, उसको बिल्कुल डाउन कर लिया था, बिल्कुल कम कर लिया था। एंड यू कैन से दैट कि खत्म कर लिया था। वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर के यूज करके जो चाहते थे वो करवा सकते थे। आफ्टर दैट ही अनाउंस ऑल द प्रोटेस्ट इलीगल। अमेंडमेंट के अगेंस्ट या किसी भी कुछ रॉन्ग अगर होता था जिम्बाब्वे में, उसके अगेंस्ट अगर कोई भी सोशल एक्टिविस्ट या सोशलिस्ट या मीडिया कोई भी अगर कुछ प्रोटेस्ट करता था, ओके, तो वो हर उस प्रोटेस्ट को इलीगल अनाउंस कर देते थे कि वो प्रोटेस्ट क्या है? इलीगल है, और उसे बंद करवा देते थे, रोक देते थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट, नोबडी कैन स्पीक अबाउट प्रेसिडेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग की। क्या चेंजिंग की? दैट नोबडी कैन स्पीक अबाउट प्रेसिडेंट, कि कोई भी प्रेसिडेंट के बारे में बोल नहीं सकता है। जैसे इन इंडिया वी हैव द राइट टू स्पीक, कि हम किसी के बारे में भी बोल सकते हैं, ओके, नॉट रॉन्ग इन मतलब रॉन्ग भी बोल सकते हैं अगर उन्होंने रॉन्ग किया है, बट हम रॉन्ग वे में नहीं बोल सकते। सो सेम एज जिम्बाब्वे, वहाँ पे भी था राइट टू स्पीक, बट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग लाई, उन्होंने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और उन्होंने ये जो राइट टू स्पीक है उसको बैन कर दिया। नाउ नोबडी कैन स्पीक अबाउट प्रेसिडेंट। कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उससे वहाँ पे उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, उसको सज़ा मिल सकती है, उस पर पेनल्टी लग सकती है। एंड देन ही कंट्रोल्स रेडियोज़ एंड टेलीविजन्स ऑल्सो। वो रेडियोज़ पे आने वाले सारे शोज़ को, टेलीविजन्स पे आने वाले सभी टाइप्स के शोज़ को कंट्रोल करते थे। वो सिर्फ उन्हीं शोज़ को शो करते थे जिससे उनकी पार्टी को प्रॉफिट मिले। जिस शोज़ में जिन चैनल्स उनके पार्टी को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अच्छा बताते थे, वो सिर्फ उसी चैनल्स को, उसी रेडियो चैनल्स को शो ऑफ करते थे। अदरवाइज दूसरे टेलीविज़न चैनल्स और रेडियो चैनल्स को उन्होंने बैन कर रखा था। इसके अलावा एक और चीज़ थी, न्यूज़पेपर वॉज फ्री टू यू कैन से कुछ भी पेपर में शो करने के लिए, वो अपने पेपर में कुछ भी राइट करने के लिए वो फ्री थी। बट जो कोई भी आप कह सकते हो जर्नलिस्ट कुछ भी रॉन्ग अगर राइट करता था इस पार्टी के बारे में, तो उस जर्नलिस्ट को बहुत बॉदर किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था हर चीज़ के लिए। सो दैट्स वाई द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे अगेन एंड अगेन elect these person because they don't want to be punished। वो पनिश नहीं होना चाहते थे, और इस डर से आप कह सकते हो वो बार बार इसी पार्टी के लोगों को ही इलेक्ट करते थे और अपना वोट देते थे। सो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे दैट जिम्बाब्वे इज टेलिंग दैट दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट एग्जैक्टली दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ लोगों के मन से नहीं हो रहा है। वहाँ पे लोग परेशान होकर या डर के ये सारे काम कर रहे हैं, और बार बार JNU-PF पार्टी के लोग ही टिल 2017 तक प्रेसिडेंट बनते थे। बट नाउ इन 2017 तख्ता पलट हुआ, चेंजिंग आई एंड नई गवर्नमेंट बनी। सो दिस वॉज द लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट a democracy government rules within limits set by constitutional law and citizen rights। okay, so this was the fourth आप कह सकते हैं feature। all these are the four features of any democratic country and you can say the characteristics of any democratic country। and now this was the last point of today, and in the next class we will discuss the next one, this why democracy, that why democracy is important for any country, why democracy makes a country why different from all the countries। okay, सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वाई डेमोक्रेसी में इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।